ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਆਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਆ, ਮਸਤੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਿਰੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੂਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਈ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਰਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਆਖਿਆ, ਮਸਤੀ ਆਖੀ। ਮਸਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਆਵੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਸ ਹੈ, ਸੁਲਫਾ ਹੈ, ਗਾਂਜਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਫਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਾਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਹੱਥ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ तमाम ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਮ ਨਾਲੋਂ, ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
जिस कैदी नूं सब तो वड्डी सजा देनी होवे, कोई शैतानी ज्यादा करता होवे, तो उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते वास्ते कलिया ही रखा जाता है। उन्होंने कहने तेनों हुण विशेष सजा देनी है, तू कला है। 4 दिनों बाद ही माफी मंगन लगता कि मैनू कलिया ना रखो, दूजियां दे नाल रखो। ऐसा क्यों? कला रहन नाल मनुख नूं अपने गम का पता चलता है, अपने दुख का पता चलता है, अपनियां बेचैनियां का पता चलता है। ते जन्म कई पीढ़ियां तो ये बेचैनियां मनुख ने इकट्ठियां कीतियां ने, इस जन्म दियां नहीं, बहुत सारियां, बहुत सारियां। वो सारियां सामने आ जांदियां ने इकलपने दे। तो अपने आप के नाल बैठना बड़ी औखी गल हो जाती है। इकल्ले बैठने का मतलब है अपने आप नाल बैठना। तो अपने आप नाल बैठना बड़ी औखी गल है। दूजा तीजा चाहिए, कोई मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई संबंधी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, और नहीं तो कुछ कम से कम टीवी सही, कोई नॉवल ही सही, कुछ ना कुछ चाहिए। मनुष्य कला नहीं बैठ सकता। कलियां वो सारियां बेचैनियां उजागर हो जाती हैं। और जे दूजे तीजे दे होंदियां भी ये बेचैनियां मिटन ना, याद आवन, तो फिर नशा चाहिए, कोई सरूर चाहिए, कोई मस्ती चाहिए। भावें कितने ही धर्म ने निंदिया इस गल नूं कि नशा मनुख की बुद्धि नूं भी कम करता है, मनुख की उम्र नूं भी कम करता है, मनुख की चेतन शक्ति नूं भी कमजोर करता है, मनुख की शरीरक बल ते उम्र नूं भी घटाता है। लेकिन मनुख धर्म की इस गल की कन तो सुन के दूसरे चो कढ़ता है। कारण अंदर बेचैन है, की करे? तो सरूर चाहिए, मस्ती चाहिए। बेहोशी तो मस्ती पैदा होती है, नशियां तो मस्ती पैदा होती है, ये बंदे नूं पता है। पर धर्म तो भी एक मस्ती पैदा होती है, धर्म तो भी सरूर पैदा होता है। धर्म भी एक नशा है, ये बंदे नूं पता नहीं। पर एक गल थोड़े समक्ष भेज करा, बाहर के नशे बाजार बिकते ने, बंदा खरीद लेंदा है, नाम का नशा आप बनाना पैंदा, बस इन्नी गल आप बनाना पैंदा, बिकती कोई नहीं। ये नाम की खुमारी बिकती नहीं, नाम की मदरा बिकती नहीं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भाई साहब भाई नंदलाल ने जो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनंत भगत ने ते हजूरी शायर ने, 52 कवियां विचों भाई नंदलाल का दर्जा बड़ा खास दर्जा से। आप दियां गालबन 7 किताबां ने, जिन्हां विचों कुछ किताबां बड़ियां प्रचलित ने। तौसीफ़े सना, बंदगी नामा, दीवाने गोया, ये किताबां भाई जी दियां बड़ियां मशहूर हैं। बंदगी नामा आपने सब तो पहले लिखी सी, जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को भेंट की थी कि आप पातशाह ने किताब लिखी है, आप देखो जरा। सतगुरु ने उस किताब दियां सिर्फ 2 नज़मां ही पढ़िया। कहने लगे नंदलाल, इस किताब का तू नाम की रखे? पातशाह बंदगी नामा नहीं, ये जिंदगी नामा है। जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने जिंदगी मिलेगी, जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने जीवन मिलेगा, जिहड़ा पढ़ेगा उसको मस्ती मिलेगी। नंदलाल इन आशीर्वाद दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। 52 कवियों विचों सिरमौर कवि सन भाई साहब भाई नंदलाल। गोया आपदा तखल्लुस से उपनाम सरने। हुण ये अपनी एक नज़म दे दीवाने गोया की गालबन दूजी नज़म दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को साकी कहते हैं। साकी ते पर्शियन दे साकी कहते हैं शराब पिलाण वाले। साकी शब्द वरते है नंदलाल ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वास्ते। उन्होंने रचना मैं थोड़े सामने रखा। विदेश साकी मरायत जाम मजा रंगीनी है दिला। ऐ साकी एक जाम पिला, सुनिया है तेरे कुल भरे हुए जाम ने, सुनिया है
तेरे कोल कोई नशा है, तेरे कोल कोई सरूर है, तेरे कोल कोई मस्ती है। ये विचार मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि साडे हिंदुस्तान में एक गल प्रचलित है कि दुराचार करके मुसलमान तबाह हो गए, वहन ते तोहमात करके हिंदू तबाह हुए, शराब करके सिख तबाह हुए। आम प्रचलित है हिंदुस्तान में गल कि दुराचार मुसलमानों की बुनियादी कमजोरी है, वहन तोहमात हिंदुओं की बुनियादी कमजोरी है। सियाणे बंदे कहते शराब सिखा की बुनियादी कमजोरी हिंदुस्तान में, ऐसा कहना आम एक चर्चा है। लेकिन बहुत कभी मुताला करिए, शराब हुण समुची दुनिया की कमजोरी बन गई, सारी दुनिया की। हर बंदे नूं नशा चाहिए। अरब दे भावें शराब हराम है, अरबी पीते हैं, बोधी पीते हैं, बुद्धिस्ट पीते हैं, हिंदू पीते हैं, मुस्लिम पीते हैं, ईसाई सारा जगत पीता है। नशा चाहिए, सरूर चाहिए। बंदे नूं इसे ही सरूर का पता है, बेहोशी, कुछ बेहोश हो जाइए, कुछ भुल जाइए, कुछ गल्लां भुला जाइए, कुछ गल्लां बार बार परेशान कर दियां ने, बेचैन कर दियां ने। कभी बगौर मुताला करना, जिस गल नूं हिरदा पकड़ लवे उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है, ते जिस गल नूं हिरदा पकड़े ना उन्होंने याद करना भी बड़ी औखी गल है। सिमरन का मतलब है याद करना, सिमरन के आखिरी अर्थ ने याद करना, और कुछ नहीं। सिमरन लफ्ज है संस्कृत का, ते इहदा अर्थ है याद करना। इनू याद करना, रब नूं याद करना। ते याद बंदा किसनूं करदा? जिन्हों भुल गए उन्होंने याद करना। कभी असीं ऐसा उपदेश देंगे हैं किसी को भी तू पुत्र का सिमरन कर, मित्र का सिमरन कर, पत्नी का सिमरन कर, पति का सिमरन कर, दोस्तों का सिमरन कर, मकान का सिमरन कर, घर का सिमरन कर। ये तो आपे ही चलता, ये तो भुलिया ही नहीं सिमरन की करे। पर रोज कहा जाता है गुरु का सिमरन कर, रब का सिमरन कर, क्यों भुल जाता है? हिरदा पकड़ता ही नहीं। तो जिन्हों हिरदा पकड़े ना वो भुलेगा। घर में बहुत सारिया चीज़ा थोड़े पईयां होंदियां, किहड़ी चीज़ नज़रां तो ओझल हो जाती है, किहड़ी चीज़ भुल जाती है, जिसनों हिरदे ने पकड़िया नहीं। घर दे विच है, भुल गई है, नहीं चेता। ते जिस चीज़ नूं हिरदे ने पकड़ लिया उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है, वो नहीं भुलेगी। हिरदे ने गुरु नूं नहीं पकड़िया, हिरदे ने रब नूं नहीं पकड़िया, रोज भुल जाता है, रोज भुल जाता है। रोज सुनना पैंदा है सिमरन कर, सिमरन कर। यकीन जानो जी याद ही आ गया है, जो सिमरन आ ही गया है उसका, तो फिर इस उपदेश की लोड़ ही नहीं। फिर तो बंदा अच्छे पैरों की याद हर वक्त उसकी याद है, वो भुलता है। जिन्हों हिरदा पकड़े ना भुल जाता है, बार बार भुलता है। तो जिन्हों हिरदा पकड़ लवे उन्होंने भुलाना बड़ी औखी कर है। तो जन्मां जन्मांतरां के अंदर कुछ गम पे ने, बेचैनियां पईयां ने, परेशानियां पईयां ने, जो असीं भुगतियां ने, वो भुलाइए तो भुलदियां नहीं, यतन करिए तो भुलदियां नहीं। दिल दिमाग उत्ते बोझ की तरह पईयां होंदियां। फिर की करे? मनुख ने ढंग लभ लिया, शराब पी लो, गांजा पी लो, चरस पी लो, सुल्फा पी लो, भंग पी लो, अफीम खा लो, बड़े तरीके कढ लैन बंदे। भुल जाओ, वक्ती तौर पर भुल जाओ। कम से कम जिन्ने चिर तक नशा रहेगा बेचैनियां तो नहीं रहनगियां, परेशानियां तो नहीं रहनगियां। जैसे जैसे संसार विच बेचैनी वधदी जा रही है, वैसे वैसे नशे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मनोविज्ञानी दो तरह के नशे ने। धर्म भी एक नशा है, होश का नशा, तो एक बेहोशी का नशा है। तो जो होश का नशा ना मिले तो बेहोशी के नशे के सारे ने लीन होना ही है, मजबूरी है। इन्होंने दोवां दे एक रस्ता मनुख अपनाएगा, या तो बेचैनियां नूं खत्म करे या बेचैनियां नूं भुलावे। तो जो भुलाना है ये तरीका बड़ा आसान है। थोड़ी जियां पी लो तो भुल जाओ, थोड़ी जियां अफीम खा लो तो भुल जाओ। और समुची दुनिया किसी न किसी रूप के नशे चल रहे हैं। आम गृहस्थियां चलते हैं, साधुओं भी चलते हैं।
हिंदुस्तान का साधु समाज जितनी भंग पींदा है, चरस पींदा है, सुल्फा पींदा है, इतना आम गृहस्थी भी नहीं पीता। कारण साधु नूं एकांत बड़ी मिलती है, कल्ला बैठना। तो कल्लेपणे विच जन्मां जन्मांतरां दीयां बेचैनियां सामने आउंदियां। की करे? फिर भंग का आसरा लैंदा, सुल्फे का आसरा लैंदा, गांजे का आसरा लैंदा। और आम गृहस्थी बंदा जो सोचां दे सागर विच लीन हुंदा है, दिमाग ते बोझ पैंदा है, फिर इसनूं पीना पैंदा, इसका आसरा लेना पैंदा। कहते ने इस्त्री जगत जिहड़ा है यह भावुक ज्यादा है, ये अंदर श्रद्धा ज्यादा है, ये मन में टिकाव ज्यादा है, इनू इतनी नशियां की लोड़ नहीं। पर जैसे जैसे संसार में इस्त्री जगत भी बेचैन हो रहा है, वैसे वैसे इस जगत में भी नशे बद रहे हैं। और जे धर्म का सरूर ना मिलिया तो करीबन करीबन इस दुनिया के हर बंदा नशा ही होगा, हर बंदा। मुश्किल है तुसी ऐसा कोई मनुख लभो जिहड़ा कोई परम होश दे सके। तो मैं अर्ज कर रहा कि नाम भी एक नशा है, कीर्तन एक नशा है, बाणी एक नशा है, नितनेम एक नशा है, अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करना एक नशा है, ये भी एक सरूर है, ये भी एक मस्ती है। इस वास्ते नंद लाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों अरजोई करते हैं और गुरुदेव नूं कहते हैं साकी। साकी कहते हैं पिलाण वाले, जिहड़ा प्याले विच पा के देवे वो साकी। ते साकी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विदे साकी मरायक जाम अजा रंगीनिए दिलहा बचश में पाक भी आसान कुनम ही जुमला मुश्किला। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे साथी, सुने तेरे कोल कोई जाम है भरे आया, मैनू भी दे, दो जहाना दियां मुश्किलां मेरियां आसान हो जान, इस लोक की चिंता ते परलोक की चिंता तो मैं बच जाऊं, इस जहान दे गम ते उस जहान दे गम ये दूर हो जावन। सुने ऐसा तेरे कोल कोई जाम है मैनू दे, विदेशा की मरायक जाम अजा रंगीनी दिलहा बचस में पाक भी आसान कुनम ई जुमला मुश्किला। मेरिया सारिया मुश्किलां आसान हो, ऐ मेरे साथी मैनू पिला। हिंदुस्तान दे ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती एक बहुत उगे फकीर होए ने, उन्हां दी दरगाह बनी हुई है अजमेर विच, उन्होंने मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं। उहदा एक बड़ा कीमती शेर है, क्योंकि ये आए सन ईरान तो हिंदुस्तान विच, मादरी जबान इन्हां दी पर्शियन सी। तो कहते हैं विदेशा की मए बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही नेस्त। एक विचार चल पई है, इसनूं मैं इस वक्त चलाना चाहना। मयूद्दीन चिश्ती कहते हैं ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे गुरु, मैनू ऐसी शराब दे कि मैं जन्नत नूं ठोकर मार दूं। विदेशा की मए बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही नेस्त। मेरे अंदर जन्नत की भी तलब ना रहे, मेरे अंदर जन्नत की भी इच्छा ना है, मैं जन्नत नूं भी ठोकर मार दिया। पता क्यों? आप सुन के हैरान होवोगे। किसी मौलवी आलम फाजल को पूछो कि नमाज पढ़िए रोजा रखिए तो फिर की होगा, कहते जन्नत मिलेगी। तो जन्नत दे की है? पता की कहते हैं? जन्नत दे हूरां ने ते शराब दे चश्मे है कुछ। उत्थे बोतलों की शराब नहीं मिलती, शराब दियां नदियां, शराब के चश्मे की कल्पना की गई है। दरअसल मजबूरी सी कि वो जो रब्बी सरूर सी उन्होंने तशरीह किस नाल देनी, शराब नाल देनी सी, मजबूरी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भावे मुसलमान ने, शायद आपको पता हो, इन्हों का दादा कश्मीरी ब्राह्मण से, हिंदू तो मुसलमान बने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बहुत उगा चोटी का विद्वान पुरुष होया और खुद कहता मैं हाँ तो हिंदू का ही पुत्र,
ब्राह्मण का, लेकिन मैं इस्लाम दी गहराइयां को समझदा और इस तरीके नाल उसने साफ कबूले। ब्राह्मण ज्यादा अस्त व राज हाय शमस तबरेजी, भाई हाँ तो मैं ब्राह्मण का पुत्र, पर मैं शमस तबरेजी के राज को भी जानदा, मैं फकीर इस्लामी फकीर दियां रमजां को भी समझदा। ये कहता है बहिश्तो रूरो गिलमा इज़ तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ऐ मौलवी तू कहना नमाज पढ़, रोजा रख ते शराब मिलेगी, पूरा मिलणगियां जन्नत विच, ये तू ईमान नूं कमजोर कर रहे हैं, ये तू धर्म नूं कमजोर कर रहे हैं। कि जिन्हों इत्थे ही पीण नूं मिलदी है उन्होंने फिर नमाज पढ़न की लोड़ ही की, बथेरी है शराब इत्थे, फिर क्यों नमाज पढ़े, क्यों रोजा रखे, क्यों मस्जिद विच जावे, क्यों तरह तरह दी कठिनाइयां सहारे। लेकिन आप सुन के हैरान हो गए, जब धर्म की चर्चा करनी पई इकबाल, तो धर्म की तशरीह उसने भी शराब नाल दे दी है। यूरोप की सियाहत करके, समुचे यूरोप के देशों का भ्रमण करके इकबाल जब हिंदुस्तान में वापस गया, उदों अजे देश की वंड नहीं हुई सी, तो इसके कोल पूछा गया कि हिंदुस्तानी जिहड़ा धर्म है ते यूरोप का जिहड़ा मजहब है, ये की अंतर है, थानू की कुछ दिखाई देता, उत्थों की सभ्यता, इत्थों की सभ्यता, इत्थों का धर्म, उत्थों का धर्म, कुछ मिलना करो, कुछ तुलना करो, ये कर गए। कहता बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरब के मैखाने, कहता शराब खाने में हिंदुस्तान के भी देखे ने, यूरोप के भी देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरब के मैखाने, यहां साथी नहीं मिलता वहां बेजौक है साहबा। कहता यूरोप के जेडे मैं मैखाने वेखे ने, शराब खाने वेखे ने, शराब किसी काम की नहीं, बिल्कुल गंदी, कोई सरूर नहीं, कोई नशा नहीं, पर साथी बहुत अच्छा है, जोड़ा पिलाने वाला है ना वो बहुत अच्छा है, उसके प्याले बड़े साफ सुथरे, उसके पेश करने का ढंग बड़ा, अंदाज बहुत वधिया है, और वो ऐसी हलेमी नाल पेश करता है कि पीण नूं जी करता है भावें शराब गंदी है। कहता हिंदुस्तान की शराब पाक पवित्र है, बड़ी चंगी है, बड़ी वधिया है, उहदे सरूर भी है, उहदे मस्ती भी है, पर साकी बड़ा गंदा है, उहदे प्याले बड़े गंदे ने, उहदे पेश करने का ढंग बड़ा गंदा है, इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता भावें शराब बहुत चंगी। दरअसल गल जी कह गया है बड़ी कीमती, वो कहता यूरोप के जिहड़ा धर्म है कोई ज्ञान विज्ञान की कोई गल नहीं है, क्षमा करनी अज ज्ञान ते विज्ञान की कसौटी ते तुसीं बाइबल को परखो ना, अद्धी बाइबल गलत हो जाती, अद्धी उहदे च लिखिया जमीन चपटी है, उहदे च यह लिखिया जमीन है जिहड़ी है साकन है, रुकी हुई है, अज विज्ञान ने गलत साबित कर दिता बई ते गुम रही है, ये चपटी नहीं है, गोल है। उहदे च लिखे 6 दिन खुदा जिहड़ा है दुनिया बनांदा रहा, 7वें दिन थक गया, वो फिर रेस्ट करन लग गया। 6 दिन बनांदा रहा, 7वें दिन थक गया, 7वां दिन किहड़ा सी? इतवार, रविवार, सूरज का दिन। इसका मतलब सूरज मौजूद सी, ते जे सूरज मौजूद सी ते संसार मौजूद सी, की खाक बना रहा सी, की बना रहा सी? इस तरह दी बच्चों वाली गल्लां पूरी नहीं उतरती गल, वो सच्चाई है। इकबाल कहता यूरोप की शराब किसी कम की नहीं, उतों का धर्म किसी कम का नहीं, पर कहता उतों का जो पादरी है ना, जो साथी है, जो मिशनरी है, उहदे पेश करने का ढंग इतना वधिया है, उहदे प्याले इतने वधिया ने, पीण नूं जी करदा, मनण नूं जी करदा। कहता हिंदुस्तान का ज्ञान बड़ा महान है, बड़ी गल है, हिंदुस्तान विच वेद ने, शास्त्र ने, उपनिषद ने, गीता है, स्मृतियां ने, पुराण ने, कोई थोड़े ग्रंथ ने, ते ग्रंथां दे सिरमौर ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी। कहता बड़ा ज्ञान, बड़ा ज्ञान, बड़ी गल, यहां साथी नहीं मिलता
हिंदुस्तान की साकी कोई नहीं। इस शराब को पिलाने वाला, पेश करके अगे रखने वाला कोई नहीं। गुस्ताखी माफ गुरुद्वारे मौजूद ने, मंदिर मौजूद ने हिंदुस्तान में, साकी कोई नहीं। शराब मौजूद है, साकी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक नशा है, एक सरूर है, एक मस्ती है। साकी तो चाहिए, तो साकी तो बिना मैखाने उजड़े पे, साकी तो बिना शराब खाने उजड़े पे, कोई पींदा ही नहीं। तो जिस ढंग दे नाल पिलाउण की कोशिश की जाती है, इस ढंग नाल सियाणा बंदा पीण नूं राजी नहीं। लड़ाई ने, झगड़े ने, वितकरे ने। हुण ये एकता का केंद्र है, तो इत्थे ही अनेकता की मैं गल छेड़ बैठा। ये शांति का केंद्र है, तो मैं इत्थे दुबदा की गल छेड़ बैठा। जिथे एक की गल करनी होवे उत्थे द्वैत की गल करिए, जिथे निर्वैर की गल करनी होवे उत्थे वितकरियां नूं ते वैर नूं जन्म दिता जाए। यहां साकी नहीं मिलता, साकी कोई नहीं। शराब तो बहुत वधिया, बहुत वधिया, साकी कोई नहीं, पीण नूं जी नहीं करता। हिंदुस्तान के गुरुद्वारियां च झगड़े, मंदिरां च झगड़े, कलेश। एक सियाणा बंदा जिन्होंने कुछ मस्ती चाहिए है, कुछ सरूर चाहिए है, और जब देखता है साथी किसी काम दे, असी लोग साथियां च आ जाने हैं। गुस्ताखी माफ, गुणी ने, ज्ञानी ने, रागी ने, प्रचारक ने, प्रबंधक ने, ये सारे साथियां च आ जाते। हुण ज्ञानी आप अज्ञानी हो गए, ज्ञानी आप लोभी हो गए, तो प्रचारक खुद प्रचार की दुनिया तो परे हो गए, तो प्रबंधक के अंदर खुद कोई सिक्की का शौक ना हो, कौन इसके हथों तो शराब पीएगा, कौन पिएगा, किनू लोड़ है। यहां साकी नहीं मिलता, वहां बेजौक है साबा, इत्थे साकी कोई नहीं। शराब ते है बड़ी वधिया, बहुत कीमती, बड़ा सरूर है, बड़ा नशा है। इकबाल कहता है साकी नहीं है, ब्राह्मण किसी कम का नहीं, मौलवी किसी कम का नहीं। उन्हें साफ कह दिता है, अगे गल खोल के कह दी है, सच कह तू ऐ ब्राह्मण। उन्होंने दिनों जदों इसने नज़म आखी सी, ओदी निगाह विच साकी ब्राह्मण ते मौलवी सन, उन्हें दोवां ते चोट की थी। सच कह तू ऐ ब्राह्मण, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कनों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर वाइस का आवाज छोड़ा। भैया ब्राह्मण में देखे कृष्ण ते राम की मूर्ति नूं अगे रख के तो इतने वितकरे खड़े कर देते हैं कि मलेच्छ है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है, तो इतने वितकरे खड़े कर देते हैं, बंदे का बंदे नाल मिलना ही औखा हो गया, मनुख का मनुख नाल मिलना ही औखा हो गया। और ऐ मौलवी तू भी घट नहीं, तू उस हर बंदे नूं काफिर कही जाना है जिहड़ा इस्लाम के झंडे तले नहीं आया। तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाग छोड़ा, छोड़े तेरे पसाने। इकबाल कहता है ब्राह्मण तैनू मैं त्यागया, ऐ मौलवी तैनू भी मैं छड्या, तो किसी कम दा नहीं। शराब बहुत वधिया है, साकी किसी कम दे, थोड़े हाथ भैड़े ने, थोड़े पेश करने का ढंग बड़ा भैड़ा है, थोड़े प्याले बड़े गंदे ने, इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता, नहीं पीते। तो मैं उस कर रहा सी धर्म नूं, मजहब नूं, धर्म ग्रंथां दी विचार नूं इकबाल भी शराब नाल तस्वीर दिता है। क्यों? धर्म एक सरूर है, एक नशा है, पर यह नशा बेहोशी का नशा नहीं है, होश का नशा है। एक बेहोशी का नशा है, एक होश का नशा। जब बंदा पूर्ण होश दे होवे, की पहचान है पूर्ण होश दे च? अजे असी पूर्ण होश दे च नहीं है, इस चक्कर च ना पैना कि असी पूर्ण होश दे च। किसी वक्त मैं गुरबाणी दी हाँ कुछ पंक्तियां लैके इस गल नूं खोलांगा। असीं सुते हैं, जागत सोया जन्म गवाया। साहिबां दी बाणी कहंदी असीं जागदे होए भी सुते हैं, कोई जागदे होए नहीं। साडी शरीरक जिहड़ी सतह है ना, वो अद्धी सुती पई है, जबान सुती पई है, अखां सुतियां पईयां ने, कंन सुते पे ने। तुसीं आपको जागदे हैं? नहीं, अद्धे सुते पे ने, अद्धे जागे।
ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੀ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਗੀਤੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਰੀ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਦੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਬੀਰ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਖੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਮਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਦੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੋ, ਖੁਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਰ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਰ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧਨ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਝਗੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਹੇ ਭੂਤ झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन से झगरत पाप। ये शब्द क्यों लड़ता है? सारा दिन लड़ता सी, सारा दिन बिखाद पाई रखता सी। गुरु रामदास जी महाराज को कुछ सौगात ले नहीं सकिया, ना ये दिती जा सकी। दूजे पासे असीं देखते हैं कि प्रहलाद है 5 वरियां का, उहदी बड़ी इच्छा सी कि जिहड़ी मस्ती मेरे कोल है वो मेरे प्यो कोल भी होवे, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਸਵੈਮ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੂਰ ਆਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ।
तो नैन रहे रंग लाई। नाम जपदियां जपदियां मनुख पूਰਨ रूप ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਗੇੜਵੇਂ ਖੂਹ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਵਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੇੜਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਭੱਲੀ ਬਾਂ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਕੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ। जितना बोलना है ज्ञान ही है, जितना बोलना है नाम ही है, और जितना कहना है वो कोई सरूर है, वो कुछ मस्ती है। संक्षेप में हुण मैं अर्ज करा, इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े शब्द ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर ने। कबीर का एक छोटा जिहा शब्द मैं थोड़े सामने रखा। कबीर नाम नूं शराब कहते हैं, नाम नूं नशा कहते हैं, धर्म नूं नशा कहते हैं। पर यह नशा होश का नशा, जब बंदा पूर्ण रूप में होश आवेगा खुमारी चढ़ जाएगी, और जब बंदा बेहोश होगा कोई शराब या कोई होर नशा लैके तां भी खुमारी चढ़ेगी। दोवां हालतां विच एक गल बनदी है कि बेहोशी की शराब विच बेचैनियां नाल वक्ती तौर पर संबंध टुटता है, बेचैनियां नूं बंदा भुलदा है। पर जब होश की शराब मिलती है बेचैनियां खत्म हो जाती है, बेचैनियां मिट जाती हैं, दुखों तो छुटकारा हो जाता है, क्लेश तो बंदा बच जाता है। भगत कबीर नूं इस तरह की मस्ती विच देख के एक जोगी ने सुभावक पूछ लिया, कबीर जापदा तू नशा कीता है? कबीर कहंदे हां कीता है। और योगियां दे शराब आम पींदे ने, चरस पींदे ने, गांजा पींदे ने, सुल्फा पींदे ने, बड़े भयंकर नशे जोगी लोग करते हैं। वो जोगी पूछता है भाई कबीर तू नशे च जापदा है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है तेरे को, दसते सही तू किन्नी क पीती है? कबीर कहने किस वक्त पीती सी, बड़ी मुद्दत हो गई है, नशा अजे तक लिया नहीं, उतरिया ही नहीं, और उतरेगा भी नहीं। जोगी कहते कि नशे च पिया बोलता है, भाई कभी पीती सी, बड़ी मुद्दत हुई है, किसी गल ही गल है। कबीर कहते हाँ मैं ऐसी शराब पीती है जिसका नशा नहीं करनी। है जी आम शराब है ना, या अफीम, थोड़े जिहा छिट्टे पानी के मारो नशे रह जाते। अफीम ची जो बंदा ना अफीम खाण वाला वो पानी के नेड़े नहीं जाता, थोड़े जिहा पानी के छिट्टे मारो ठंडे नशा लै जाता है। पर नाम का नशा तो ऐसा है उबलती देग में भी उतरता नहीं, नशा बनिया रहता, सरूर बनिया रहता है। वो ठंडे पानी नाल लै जाता है, वो उबलते पानी च भी नहीं बनता। एक सरूर है, एक मस्ती है, एक खेल है। तो जोगी स्वभावक पूछता है कबीर मुद्दत हुई है पीती सी? हाँ मुद्दत हुई है। नशा लैंदा ही नहीं, वधदा जा रहा, लैंदा ही नहीं। अच्छा फिर ये सानू भी दस कि शराब कित्थों मिलती है? कबीर कहना मिलती किधरों ही नहीं, आप बनानी पैंदी है। तो जोगी कहता अच्छा मैनू भी बनाने का ढंग दस ताकि मैं भी पीया। तो इस शराब के बनाने का ढंग गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर ने।
सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच गुरु नानक देव जी के शब्द ने रामकली राग के अंदर। रामकली राग के अंदर ही गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द ने और 8-10 शब्द इसे संबंध के भगत कबीर के जोगियों प्रति। एक शब्द मैं थोड़े सामने रखा। भगत कबीर कहना, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, बहु भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औ मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या, त्रिभुवन भया उजारा। औ मेरा मन मतवारा, ऐ अदोत महात्मा, मैं जिस दिन भी पीती है मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया। उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या, त्रिभुवन भया उजारा। ऐ योगी, जिहड़ी शराब तू पीना है, तू अपना नाम भी भुल जाना है, पर जिहड़ी शराब मैं पीती है, त्रिभुवन भया उजाला, 3 लोकां का प्रकाश हो गया, बड़ा चानना हो गया, बड़ा ज्ञान मिल गया, बड़ी सूझ मिली है। पर यह शराब तुसीं बनाई किस तरह? कबीर बनाने का ढंग दसते हैं। गुड़ कर ज्ञान, शराब मिठे तो ही बनाई जाती है, मिठे नूं कौड़ा करना होंदा, और कुछ नहीं। कहते मिठे की जे अत कर दईए ना, अत तो मिठा कौड़ा हो जाता है, ते गुड़कन की अत कर दईए तो गुड़कन मिठी भी हो जाती है, अत पे जाके। और अक्सर जो थोड़ी जिहा भी शराब पींदा है, समझ लो बहुत सारा मिठा तो उसके अंदर जाता है, बहुत सारा मिठा, थोड़ा मिठा नहीं जाएगा। हुण काफी कुछ मिठा हो तो थोड़ी जिहा शराब बनती है, जी इतना मिठा उस बंदे के अंदर जाएगा कि शरीर रोगी नहीं होएगा तो और की है, दुनिया भर दी बीमारियां नहीं सहेड़ेगा तो और की है, पर वक्ती तौर पर उसने बेचैनी तो बचना इस वास्ते करना। दरअसल शराब की है मिठे नूं कौड़ा करना, मिठे गुड़ नूं कौड़ा करना, मिठी शक्कर नूं कौड़ा करना, मिठे संतरियां नूं कौड़ा करना, मिठे अंगूरां नूं कौड़ा करना। कई दफा मैनूं ख्याल आंदा है, जिन्हां बंदियां ने मिठे अंगूरां नूं मिठा नहीं रहन दिता, मिठे गुड़ नूं मिठा नहीं रहन दिता, उन्होंने अपनी जिंदगी कितने मिठास रहन दी होगी, जिंदगी भी कुड़कन नाल भर छड्डी होगी, जिंदगी भी कौड़ी कर छड्डी, क्योंकि मिठे जो कौड़े कर छड्डे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, प्राचीन समय ते हुण भी भारत विच शराब जिहड़ी आम विकदी, जिहनूं देसी कहंदे ने, वो गुड़ ते मऊए तो बनदी है। मऊआ एक फुल होता है, उड़ीसा बंगाल बिहार ते यूपी के थोड़े जिहा जिलियां ये बहुत सारा पाया जाता है। ये दरख्त अंब के दरख्त की तरह होता है, उतना ही वड्डा होता है, ते मार्च अप्रैल में उन्होंने चिट्टे चिट्टे फुल लगते हैं चंबेली की तरह, उन्होंने फुलों में बड़ी मिठास होती है। गुड़ के नाल मिला के मऊए ते गुड़ विचों शराब कड्ढी जाती है। भगत कबीर उसे का एक उदाहरण सामने रखते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, भौ भाटी तन धारा। हुण भट्ठी ते चाहिए ना जिहदे च गुड़ पाना है, जिहदे च मऊआ पाना है, भय दी भट्ठी बनाइए, परमात्मा का भय, अकाल पुरख का भय, ये मैं बनाइए भट्ठी। हुण बंदा बंदे तो डरदा है, बंदा कानून तो भी डरदा है, बंदा रब तो डरदा है, बंदा गुरु तो डरदा है, कतई नहीं। मैं समुची दुनिया घूम फिर के देखा, जो अपने ढंग नाल अध्ययन किया हो सकता है, गलत किया होवे, बंदा कानून तो भी डरता है, बंदा बंदे तो भी डरता है, बंदा गुरु तो नहीं डरता, बंदा परमात्मा तो नहीं डरता। और जिस दिन परमात्मा तो डरे उसे दिन ही भगत बन जाता है। और परमात्मा निर्मल है, परमात्मा का भय भी निर्मल है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम आदोर। निर्मल भय मिले है, परमात्मा निर्मल है, उसका भय भी निर्मल है। ते जिस दिन बंदा उसका निर्मल भय अपने अंदर धारण कर लेता है, चारों पासे अकाल पुरख दिखाई देता है, फिर उसके अंदर कोई भय रह भी नहीं जाता, वो निर्भव हो जाता है। निर्भव जपे सगल भव मिटे। तो खैर भगत कबीर के अंदर भय की मैं भट्ठी बनाई, इस भय रूपी भट्ठी विच ज्ञान का गुड़ पाया, ज्ञान का मऊआ पाया। ध्यान किसका जुड़ेगा? जिसके अंदर गुरु का भय है, जिसके अंदर गुरु का अदब है, जिसके अंदर गुरु की शरत है, जिसके अंदर गुरु का भरोसा है, उसका ध्यान जुड़ेगा। जिसका ध्यान जुड़ेगा ज्ञान उन्होंने ही मिलना है। ये सब कुछ इकट्ठा जुड़े हुआ है।
जिथे भय है उत्थे ध्यान है, जिथे ध्यान है ज्ञान उत्थे ही है। बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं होता। बाणी च ध्यान जोड़ो, वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करते हाँ, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ो, इस ध्यान ने ज्ञान ਨੂੰ जन्म देना है। तो गुण कर ज्ञान ध्यान कर बहुआ, भव भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औधु मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाखिया, त्रिभुवन भया उजारा। कबीर कहते ने नली में इस भट्ठी ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਲਾਈ है, नली लाई है भक्ति की, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ शराब निकल निकल के आ रही है, और मेरा मन पी पी के मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई। क्षमा करने खुमारी ना होती ये भगतां ने नाम कदों का छड़ देना सी। कोई एक दिन जपजी पढ़ी, रोज रोज हम पढ़न की की लोड़ है, एक दिन सुखमनी पढ़ ली, रोज रोज पढ़न की की लोड़ है, नहीं खुमारी है, इस वास्ते भगत पढ़ते हैं। खुमारी है इस वास्ते भगत जपते हैं। और खुमारी ऐसी जो परम होश थी खुमारी, जिहदे नाल दुख कलेश सारे मिट जाण, परम आनंद है, परम रस है। हुण इस भय रूपी भट्ठी दे थल्ले अग केड़ी बादी है, उस अग का भी जिक्र करते हैं भगत कबीर। दोयपुर जोर रसाई भाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। बालन केड़ा डाया, क्योंकि भट्ठी के थले अग ना बालो तो शराब से बनती कोई। अग केड़ी बाली है, कबीर कहना मैं थले बालिया काम नूं ते क्रोध, काम क्रोध दोए किए जलेता, जलेता कहना बालन ईंधन, ये मैं जलेता है, मैं बालन कीता है, काम नूं साड़िया, क्रोध नूं साड़िया। कि ज्यों ज्यों क्रोध सड़ता गया, ज्यों ज्यों काम सड़ता गया, भय रूपी भट्ठी विचों, ज्ञान के गुण विचों, ध्यान के मौगे विचों शराब निकलती रही, शराब निकलती रही। उन्होंने पी पी के मैं मतवाला हो गया, मैं मदमस्त हो गया। ते हुण भगत कबीर तो पूछिए, ऐ शराब बनाने की जात तुसी किस तों सीखी? वो भी ढंग दसदे ने, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुरु ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाए। सतगुरु तो मत लईए, सतगुरु ने मैनू सोच समझ दी है, इंज शराब बनाई भी है। ते कबीर कहना जिस दिन भी मैं पीती है, दास कबीर तास मद माता, मद कहने शराब, जिस दिन भी मैं ये शराब पीती है, नशा ऐसा चढ़िया है लथा ही नहीं करी। मैं सरूर बेच रहा, मैं मस्ती बेच रहा, मैं आनंद बेच रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को वेख के बाबर में भुलेखा लग गया कि ये साधु आम हिंदुस्तानी साधुओं की तरह भंग पींदा होवे। जेल में भंग पेश की सी बाबर ने, साहिब कहने लगे नहीं तेन भुलेखा है, इतने नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पातशाह दी अखां नूं वेख के उन्होंने भुलेखा पै गया कोई पींदे ने, भंग पींदे ने। ते मैं लवस फिर दोहरा देना, एक शराबी बिठा दो जिन्हें रज के पीती होवे, ते एक जिसने रज के नाम जपया हो ते कोलों कोई सरूर होवे, दोनों को बिठा दो, पहचान करनी औखी हो जाएगी। ये शराबी केड़ा और ये नाम खुमारी वाला केड़ा, लेकिन बाद में किरदार तो पता जरूर चलेगा, कर्मा तो जरूर पता चलेगा। हाँ ये निरा ही शराबी है और ये भगत है, लेकिन खुमारी तो भुलेखा लग सकता है, सरूर तो जिहड़ा है भुलेखा लग सकता है। तो सतगुरु की बाणी का फैसला, धर्म एक सरूर है, धर्म एक मस्ती है, धर्म एक खेड़ है, धर्म एक नशा है, धर्म एक खुमारी है। ऐसी खुमारी जिहड़ी होश तो पैदा होती है, जैसे जैसे बंदा नाम जपता है होश बनता है, कि जो बंदा परम होश विच जाता है सरूर तारी हो जाता है, नशा तारी हो जाता है। एक अगम्मी दुनिया की पढ़ते उसके उत्ते खुल जाते हैं, एक अगम्मी प्रकाश उसके अंदर पैदा हो जाता है, और सारिया चिंतावां ते कलेश तो उसका अंत हो जाता है। इसे वास्ते नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कह रहे हैं, तुसी ते साथी हो, तुसी ते नाम की शराब वंडण वाले, तुसी ते ज्ञान का सरूर वंडण वाले, ते मैं भी इसे सरूर का तलबदार हाँ। ऐ साथी मैनू भी पिला, और पींदियां सार
मैं जन्नत नूं ठोकर मारने आ विदेशा की मरा यक जाम अजा रंगीनी ए दिलहा बचश में पाक भी आसा पुनम ही जुमला मुश्किला। इतने वचन इस शब्द प्रवान करने विचार दी आखिर तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च दिलों अरदास पातशाह सब नूं ज्ञान का सरूर बख्श, सब नूं नाम का सरूर बख्श, सारियां नूं कीर्तन का सरूर बख्श, सारियां नूं नितनेम का सरूर बख्श, सारियां नूं नाम का सरूर बख्श, ताकि शराब के सरूर तो छेड़ा छुटे और तरह तरह के नशियां तो जिंदगी बचे। और मैं फिर अर्ज कर दिया जे ना तुसी नाम के सरूर के नेड़े आए तो फिर शराब को मजबूरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदे के अंदर तो बेचैनी है, बंदे के अंदर तो दुख है, बंदे के अंदर तो संताप है, बंदे के अंदर तो कलेश है। या तो उसनों भुलावे या तो उसनों दूर करे। शराब नाल भुलाए जाते हैं, नाम नाल दूर किए जाते हैं। बेहोशी बेचैनियां नूं बंदा भुल जाता है, होश तो जरूर हो जाती ने। नाम जपदियां जपदियां परम होश मिलता है। ऐसा होश सारे कलेश मिट गए, सारे संताप मिट गए। मेरे बादशाह सारियां नूं अगम्मी सरूर बख्शण ते सारियां दे संताप दूर करन। भुल चुक लई खिमा दी जाचना गज बज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।